Hello students, I am Ved Kumar Gupta from Computer Science and Engineering, IPS Academy, Institute of Engineering and Science. Today basically we are going to learn about the Python, the basic fundamentals of the Python. Python is an open source programming language. So just today we will read about that. So before starting the Python, what is the Python? We will talk about the programming. Why we are reading the programming? What is the programming? So as we know that very well, programming is nothing but a mental process for thinking up about the instructions which we are going to give to machine for the coding. As we can say that it's a mental process of thinking to provide the instruction to the machine in the form of coding. As we said that if someone want to make a tea and you want to provide the instruction how to prepare a tea, then you will say that just go on the kitchen, start the gas, put the vessel on the gas, then add the water, then sugar, then milk, and then start the boiling that particular items in the vessel. Just we are giving some instruction to the person and he will execute that instruction. The human instruction is easily interpreted by the humans and they can easily understand what you are talking to him. But when we are talking about the machines, at that time things are varied because machine is not able to understand as we are talking. At that time we need some instructions or the syntax which can be easily understood by the machine, and here in the programming we are going to do the same thing. Just we are providing the instructions in the form of code which can be easily understood by machine, and then machine will execute that and provide the result to us. Basically we have some types of code like that, the imperative, functional, logical, object oriented, as well as the procedural, scripting and database. These are the various types of programming which we can use to provide the instruction to the machine. There are the n number of other examples which we can use in terms of programming. So basically for any programming language, just we are trying to provide the instruction to the machine to execute and provide the result to us. A simple mechanism or fundamental for the programming. When we are talking about the Python, so basically Python is nothing but a very popular general purpose language which is interpreted, is interactive, object oriented, as well as the high level language programming. What do you mean by the high level language programming? Mean that here we are not directly dealing with the hardware of the system. We are not bounded to give the instruction in the form of adders or microcontroller programming. Just we can write the syntax and we will have the result out of that syntax. As well as when we are talking about the Python, so Python have a capacity to dynamically handle the garbage collection programming. It's basically implemented in era of the 1985 and 1919. Between the 1985 and 1919 by the Guido van Rossum, one of the person who basically implemented Python programming language. A Python programming language is available under the GNU GPL. What do you mean by the GNU GPL? It's a general public license where we have a capacity to work on the open source. Basically open source as a platform where we have the programming languages as well as the many softwares free of cost for everyone for the public beneficiary. Next we will talk about the basic paradigm where the Python supports. So we can say that it's supporting the procedural programming, object oriented programming, as well as the functional programming. Basically Python is one of the easiest language which can learn easily by any student at any time. It's easy to implement as well as the easy to learn also, because its syntax is quite easy to learn. So next, the same question arises in mind, why we are going to learn the Python? So basically we are going to learn the Python because
Right now we are talking about the era of the artificial intelligence, and the biggest reason to learn the Python is a well defined library for the artificial intelligence as well as the machine learning. By using the Python we can easily implement the AI ML programming problems easily. We can solve by the coding of the Python, as well as it's open source. Free open source means that it's a free of cost, it's simple, easy to learn, as we discussed earlier, it's versatile, and you can create the many things out of this. So it's the biggest reason to learn the Python. By this, student can be able to solve its problem, he can make the good projects, he can interact with the real life problems to solve the real life problems with the open source programming. And it will be the biggest reason by which we can solve our complex problems easily. So just these are the reasons why we are talking about that we should go for the Python programming. There are some characteristics and applications for the Python. First we will talk about the characteristics of the Python. So just we can talk about that it's a functional structured programming language. We can use it for the scripting as well as the bytecode binding for the large application. It's an high level dynamic data type containing. It have supports of the data type checking. It's have a feature of automatic garbage collection which will make it faster and easy to use. It have a capacity to integrate with the C, C++, COM, ActiveX, Corba, Java and many more applications, by which its usability increases. Then next we will talk about the applications. So as we discussed, it's easy to learn, it's easy to read, easy to maintain, as well as it's have a large standard library which is beneficial for the user as well as the student. It has the interactive capacity, it's a portable as well as the extendable and scalable. Why we are talking about the scalability? Because when we have a capacity of scaling, then we can use any programming language far more better ways. Then we will talk about the basic history. So as we discussed, Guido van Rossum in the late 80s, or you can say that 1980s to 1990s, in between he developed the Python, and then after that the research is continuously going on. In 1991 Van Rossum again worked on the Python and implemented a successor of ABC language which was developed in 1980s. There are some major releases of the Python. One is Python 0.9.0, Python 1.0 in 1994, Python 2.0, one of the major successful version of the Python, which is launched in the October 2000, which have the capacity, basically capacity of composition, garbage collection, Unicode support and many more. After that the Python is going to roll out in the market after October 2000, and it will be learned by the many institutions as well as the companies or the IT industry. After releasing of Python 3.0 in the December 2008, they again released the Python 2.x version in 2020, which is version of Python 2.7.17. Basically it's released due to some demands in the market. The market is not ready to shift, or the organizations are not ready to shift on the Python 3. They have some demand on the Python 2, and open source community continuously working on the Python 2 at that time. So they have again a new version with the Python 2.7.17, and right now we have the version of Python is the 3.x, and 3.x you can say that in the February 2023 we have the 3.11.2. So these are the major versions or
you can set that the major releases in the Python. It will be continuously updated by the open source community. You have a website that the python.org. It's an open source website where you have the all source code, all major data to know about the Python. If you have some problem in the notes, if you want some material or information of the library where sometime we will stuck to solve some real-time problem, so on the Python open source website or the python.org, you will go at there and you will got each and everything. We will try to cover each and everything at here, but if you have some problems, you can go at there. Okay, so just these are the basic things, and after that all these things, why we are going to learn the Python, what is the Python, what are the characteristics, what are the applications, all basic theories. Just we will move out for the next one. So what will be the major milestone, or what will be the path to learn the Python? If we are going further in the Python study, then what will be the next? So first, today we are going to cover the basics of the Python. Then next you should move for the, after the basic of Python, you should move for the Python OOP. Then next one is the advanced Python. It's covering up the basic libraries, modules, object oriented connectivity and everything in the advanced Python. Then Python concurrency, regex, Tinkerton tutorial. Tinkerton tutorial is nothing but the desktop GUI for the Python applications. When we are pro, or when we are very good in the basic fundamental programming, then we should go for the implementation of the application. At that time we will go for the web application, or we will go for the mobile application, or we will go for the desktop application. And when we are moving for the desktop application, Tinkerton is very good, but when we are moving for the Django, it will be help to link the Python with the web application, as well as the with the using of the concurrency and Django or the PyQt tutorial, we can implement the mobile applications also. So these are the basic application. Python NumPy is very helpful for the AI and ML application, as well as the data analytic application. Python unit testing is helping also in the same way. So finally, when we are doing basic fundamental, when we are completing the desktop application idea, we have the idea of the web application, we have the idea of mobile application, how we can use the Python in the multiple direction, then we will try to solve the real life problem. At that time, the AI ML applications, so Python is also helpful, as we are discussing many times. Python have a large library for the AI and ML, so it will be helpful in that. So it's not the end, it's the beginning. When we are starting the Python, it's a large area where we can learn more again and again. Now we are you may have some libraries regarding to the Pythons in the generative AI also. So next we will go for that. So first we will start with the basic coding concepts of the Python programming. So here we have some basic application. So as I told you, I hope you have some idea of basic programming. You have completed your C, C++ like programming languages, and you have some idea of programming. If you won't have any idea, just leave it. Just we will start with the Python programming. We will go by the one by one each and every concept of the programming. So first we will talk about the basic prompt of printing anything or displaying any message using the programming language. So when we are talking about the C, C++, at that time we need some header file, then we have some function which is known as a main function, and then we have some print instruction, and we have some syntax for that, and then we have the in this body, then we have the result. So it will be the whole code for printing a small statement. It may be the hello in the when we are taking the reference for the C and C++ programming. But when we are talking about the Python, in the Python printing is quite simple.
we have a simple, what we want to do, we want to do the print. So then we will write the print, and then what the message we want to display. If we want to display the name of some person, just we want to write the hi. So just you can write that the hi Neeraj. And when we will prompt, we will execute the code, we will get the result, hi Neeraj. So either it's simple. So I think hope so that you will feel easy. It's a simple, write the code, execute, and you will get the result. But it's a particular platform that's known as a Google Colab. Here we are taking the reference as a Google Colab, which is one of the application provided by the Google on the web, and we are using that to run the Python codes. But you can run the same things as well as on the Python particular application. You can download the Python and run as a desktop application. So it's a website python.org, as I discussed. When you are going to download Python 3.1.2, it's a last release. It's released in the October 2023. After February it will release in October 2023. It's a latest version. You can download it. When you are downloading it, you will get an application, and then after installing that application, you will have particular prompt where you can write that code and you will get the result. It's an offline desktop application which we can use. But when we are talking about the online platform, then it's an Google Colab. We are using the Google Colab here for implementing our Python code. Just मैंने आपके सामने Google Colab सर्च किया है, and then you have the link colab.google.com, and here you have some Google Collaboratory. You have the release node, notebook, resources available on the website. You can use it by the Google login, by the Gmail login, simple Gmail login. You can use it. So just I have done same. You have some basic idea how to use the Google Colab from here. Just we have login from our ID and we will get the same thing. You can do it, you can create the new notebook if you want, and you can use the existing if you have the open Colab. So we have the both option from where we can start. So I have opened my existing workbook. If you don't have any existing workbook, you can go for the creation of the new workbook, and you will get the environment like this, where you have the option of code and text. By using the code, just we can write the code here, and by using the text option, we will write it here. So these are the simple options which we can use it. Okay, so I think so there is no confusion regarding the GUI. We can go for the desktop application, as well as we can go use the internet we can use the Google Colab for the implementation. Okay, okay students, any problem? Okay, so just we will move again. We will switch our window to existing, where we are reading. It's our existing application where we are reading. So just we will start as an example. Here we have the basic. This is a play button as you. So it's used for the running the particular code. You can use the shortcut as the control enter, or you can click on that particular button and the code will be executed. Here we have this particular symbol representing the output window. Hi Neeraj is our output for that particular code. We can use the displaying a message, a single quote or double quote both. Here in this example we are using the double quotes, but here with this example we are using the single quote. Here double quote and single quote both are using to represent the string content.
when we are displaying the message, the string content will be displayed by this. Okay, so I think so there is no confusion and you are cleared about the fundamental of Google Colab, how we can use it. Okay, then next we will move for the variable assignment. So we have the basic syntax for that particular. We doesn't require to define or declaring a particular variable which data type it will be contained. When we are talking about the C++, at that time we should define first, we should declare first. Particular variable is a int, particular variable is a character, particular variable is a string. At that time we doesn't require. When we are giving the input, our particular Python will be understand what is the basic concept. So here we write that the a equal to 5, here we write that the b equal to abx, here we write that the c equal to ies. As you see that in the abx and in the ies we have the string text content. Okay, just here by using the print commands we have write that the particular display message. What is the display message? The value of a is, and then we will write the a. The value of b is, then we will write the b. So it basically we are concatenating the variable with the string and we are displaying that with the print command as we do it here. So what is the result? A equal to 5, b equal to is abx and c equal to is. Why we are having the is and abx jointly with each other? Because here we are using the concept of concatenation. We will write that the string concatenation at here. We write that the c plus b, and c is nothing but the what we are assigned to the c, that is the is, and what we assign to the b, that is the abx. So our result is the, after the string concatenation is is abx. I think so it's clear to you. Next we are moving for the indentation. Indentation is basic requirement for the Python, because as we know that in the C or C++ or in the Java we have the body for a particular program. If we want to write the any function or any logic, at that time we have some body. We write the curly bracket and then we will end the curly bracket, and in between that if we write some code, we will say that it's a body of that particular function. But when we are talking about the Python, then here we don't have any concept of body. Here indentation is necessary. So indentation is basically refers to the spaces that begin to the code line, and basically indentation is nothing but representing to the block of codes in the Python. If we have some logic of if and we are using that particular this symbol, two simple dots, it's beginning of the intent, it's particular representing to the beginning of the indentation, and then after that we have some spaces here, two spaces at here. These two spaces represented that we are indented the some block of codes from the main line. Okay, we will learn some code, we will write some code, and we will execute some code, and you will get more detailed idea about the indentation. So you should remember a thing: if you want to write a code of block, a block of code in the program, at that time you require the indentation. When you want to start the body and end the body, so in place of curly braces we will use the particular code. Okay, so we will use the indentation in the Python programming. Here we will write the n equal to 5 and print that. Here we write 6 is greater than 5. If yes, then we will give the answer. If no, then we will have the error. So we will run these particular codes first.
after clearing our screen. Okay, this particular line of code is not executing, but this particular line of code will be executed. Why this will not executed and this executed? Because when we are checking that 6 is greater than 9, so mean that 6 is not greater than 9. When we are seeing that, so we have the result as a false, and if our condition is false, then next statement will not execute at that time. Here our condition is true, so that our result will be true. When we particular remove this single quotes, then what will be the result? If we execute this particular code, we will have some error. Why we are having this error? Because in the print, if we are we want to display any message, or we want to write any string, we should write in a single or double quote, as we discussed earlier. If we are not writing that particular contained in a single or double quote, mean that we are representing that contained as a variable, and if that is not a variable, we have the error, that is the name error, because yes is not defined anywhere. If we will write in a single or double quote, it will be treated as a string, right? And but here we are not using the single or double quote, mean that it will be searched as a Python interpreter by the एज अ वेरिएबल में. हमारा पाइथन इंटरप्रेटर कैसे सर्च करेगा? एज अ वेरिएबल सर्च करेगा, और जब एज अ वेरिएबल सर्च करेगा तो उसे मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. मीन दैट वी हैव द confusion, our system have a confusion. What is that meaning of that? Yes, it's a variable, it's a string, or it's something else. At that time वो क्या होगा? नेम एरर जनरेट करके देगा. तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो क्या हो, हमारे पास एटलीस्ट सिंगल कॉट या डबल कॉट हो. क्लियर है? टाइपिंग मिस्टेक्स ऑलवेज क्रिएट द प्रॉब्लम, तो वी शुड अवॉइड द टाइपिंग मिस्टेक्स. ओके, तो फर्स्ट वी विल रिमूव द राइटिंग content and we will move for the comments in the Python. So as we know that very well, in the programming language always we need some comments. Comments की ज़रूरत क्यों होती है? तो वो कंटेंट जो मेरा प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, मेरे प्रोग्राम में मैंने सिर्फ जो है बाद में याद रखने के लिए एज ए रिमार्क कुछ मुझे डालना है, तो वो मुझे किस में डालना है? एज ए कमेंट डालना होगा. ठीक है, फॉर रिमाइंडिंग द थिंग, फॉर रिमेंबरिंग द थिंग्स हम क्या करते हैं? कमेंट्स का बेसिकली यूज करते हैं. तो बेसिकली जब भी मुझे कोड के साथ कोई क्या देना है, पॉइंट देना है, कोई नोट देना है, कोई ऐसी टास्क लिखना है जो मुझे बाद में काम आ सके. मैंने कुछ सोचा कि हाँ इसका मतलब ये होना चाहिए, अब बाद में जब मैं साल भर बाद, 2 साल बाद, या मेरी जगह कोई और आके कोडिंग कर रहा है और मेरे प्रोग्राम को देखता है, ठीक है, आई हैव लीड द कंपनी एंड समवन एल्स इज कोडिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, okay, in place of me he have a job. So at that time he should understand what you have a thought process at that time where you are implementing the code. To solve this problem we need the comments. So for comments in Python we have the 2 options. Basically we will go for the first one is a hash and second one is a triple quote. So it's a multi-line comment and it's a single line comment. So we have the 2 option for the comments. One is a single line comment and second one is a multi-line comment. We can go for the single line comment as well as the multi-line comment. What is the difference between the single line comment and what is the meaning of the multi-line comment? So when we write a comment in a single line, we doesn't want to go for the next line. At that time we will write the hash and then we will display our message, my first Python program, that is the print program. When we are going for the multi-line comments, basically we have written it here, just we have 1, 2 and 3 lines at here, so we will go for the particular triple quote. Ab here by using the triple quote you can create the multiple lines as a comment. So it's a major advantage of the single line and multi-line comment. What we required. Now further we will move Python variables.
Python, in the Python variables, basically we will talk about how a variable will work to store a data, what is the mean of declaration, what is the mean of definition. So as we see in the above example, we doesn't require any type of declaration in the Python. It's the beauty of the Python coding language. You can say that we doesn't require mean that we will give the input, he will understand what we want to say. If we will write A equal to 2, B equal to 3, Neeraj equal to 4, Mayur equal to 44, Ved equal to 444, at that time you will display, you will get the result. Here we are never defined that the what is the basic data type for A. Basically in this all we are assigning the all variable as an integer data. Okay, 2, 3, 4, 44, 444, all are the integers. Good. The integers are the basically numbers. And here in the next example, just we are defining IPS Academy. IPS is also written in a single quote. Academy you can write in a double quote. When we are writing anything in a single quote or double quote, it will be treated as a string. At that time we are again just giving the input to our variable. We are storing some value in the variable, and our programming language itself understanding what is the data. Okay, so by this it will be easy for us to get what is the, we have written that particular, we are just executing our code. आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, basically we have the two type of options. Just when we have the when we are in a Colab, we have the code option as well as the text option. Normally this part is written in a, this particular part is written in a text, and particular executable content is written in a code. So when you are using the Colab, you should remember these things, otherwise you will have the problem. If you want to execute the code contained in the text, so it will not possible. Okay, then as we said that ये हमने लिख दिया, हम और आगे एग्जाम्पल में मूव करें. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल्स को जो है डिफाइन करा, वन बाय वन एग्जीक्यूट करा. अभी तक हमने क्या किया था, ऊपर सेम प्रोसीजर किया था, है ना. मेरे ख्याल से यह आपको क्लियर होगा कि आपने क्या किया था. यहाँ पे हमने क्या किया, कॉन्केटेनेट किया था प्रिंट में एक्स और वाई को. एक्स में इनपुट स्ट्रिंग डेटा अलग था, वाई में इनपुट स्ट्रिंग डेटा अलग था. बेसिकली वी कॉन्केटेनेट एंड वी विल हैव द रिजल्ट. एज वेल एज यहाँ पे भी हम चाहे तो कॉन्केटेनेट कर सकते हैं. अब ये तो सिंपल एग्जांपल हमने लिए थे सारे. हमने क्या किया, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरिएबल लिया, उसमें डेटा को स्टोर किया, उसको डिस्प्ले करा लिया, क्वाइट इजी. बट अगर मेरा कोई इनपुट ही जो है वो गड़बड़ हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम. तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, है ना. बेसिकली हमने यहाँ पर क्या लिखा, p इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 5, और यहाँ लिखा प्रिंट p एंड प्रिंट k. तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, बताएंगे आप. तो इस पर्टिकुलर केस में रिजल्ट क्या होना चाहिए, p को हमने 1 असाइन किया है, जैसा कि हमने ऊपर किया था. ऊपर क्या किया था हमने, इससे पहले हम जो इनपुट में देते थे, हमने x इक्वल टू IPS लिखा, y इक्वल टू Academy, तो ये मेरा रिजल्ट आ गया था. या b इक्वल टू 3 लिखा, तो यहाँ पे भी रिजल्ट में 3 आ गया. तो नीचे जब मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ जाऊंगा तो भी मेरा रिजल्ट जो है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए. तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, 1 एंड 5. पर 1 एंड 5 क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है, आ जाएगा, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा, तो सिंपल p इक्वल टू 1 तो मेरे पास आ रहा है. ये जो मेरा p इक्वल टू 1 है वो तो एग्जीक्यूट होके रिजल्ट में आ गया. पर जो मेरा k इक्वल टू 5 था, ठीक है, इस पर्टिकुलर k इक्वल टू 5 में मेरे पास क्या आ गई, एरर आ गई. एरर क्यों आ गई, तो बेसिकली यहाँ पर जो मेरा k था वो क्या था, कैपिटल लेटर में था, और यहाँ पर जो मैं इन डिस्प्ले में रिजल्ट के लिए यूज कर रहा हूँ वो क्या है, स्मॉल लेटर में. तो ये पर्टिकुलर स्मॉल k जो है वो डिफाइन
नहीं है, मैंने डेटा स्टोर किया कैपिटल के में और रिट्रीव किससे कर रहा हूं, स्मॉल के से। तो मतलब एक चीज और हमें क्लियर होती है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। आपको ये याद रखना है, पाइथन क्या है, एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहाँ पर स्मॉल के और कैपिटल के का मीनिंग अलग अलग है, दोनों ही अपने आप में अलग अलग वेरिएबल है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, अदरवाइज यू विल हैव एरर एंड अगेन दिस इज अ नेम इज नॉट डिफाइंड एरर और यू कैन से दैट द नेम एरर। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द अगेन क्वेश्चन। हमने यहां पे बोला IPS इक्वल टू 1 एंड IS इक्वल टू ग्रेट, तो एग्जीक्यूट होगा मेरा कोड, पक्का? क्या रिजल्ट आएगा, 1 देन ग्रेट, ये आ जाएगा क्या? नहीं, हाँ ठीक है, चेक करते, एग्जीक्यूट करते हैं हमारे कोड को, ठीक है। तो अगेन हियर वी हैव सम एरर। तो एरर किस में आया, दोनों में आया क्या? तो एरर जो है वो आया मेरा लाइन 3 पे, ग्रेट में GR8 इज नॉट डिफाइंड। 1 में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लियर है कि 1 जो है वो क्या है, मेरा नंबर है। बट व्हेन वी आर गिविंग द इनपुट एज अ GR8 एंड GR8 इज नॉट इन अ डबल कोड, इट्स नॉट इन अ स्ट्रिंग, तो वो GR को जो है एज अ टेक्स्ट कंसिडर करे, कैरेक्टर कंसिडर करे या एज अ नंबर कंसिडर करे। मेरी मशीन को क्या है, कंफ्यूजन है। एट दैट टाइम ऑफ कंफ्यूजन जो है वो क्या देगा मुझे, अगेन अ नेम एरर। अगेन क्या मिला मुझे, नेम एरर मिला। तो ऑलवेज जब मैं इनपुट दे रहा हूं, जो वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहा हूं, तो आई शुड बी अ प्रिसाइज, मुझे किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, क्योंकि यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं कि मेरा वेरिएबल किस टाइप का डेटा लेगा, मेरा वेरिएबल खुद डेटा से इंटरप्रेट कर रहा है कि वो किस टाइप का है। तो हमारा इनपुट क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, आइदर इट्स अ न्यूमेरिक, आइदर इट्स अ कैरेक्टर, और इट मे बी द स्ट्रिंग और इट मे बी द फ्लोट। तो हम जो इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसे कन्वर्ट करके यूज करेगा। क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मल्टीपल असाइनमेंट्स। अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिंगल असाइनमेंट्स की बात कर रहे थे, अब हम मल्टीपल असाइनमेंट्स की बात करेंगे। हमने A लिखा, B लिखा, C के साथ जो है मैंने इतने सारे क्या करे, असाइनमेंट कर दिए। क्या किया मैंने, A, B, C और उसके बाद लिख दिया 20, 2.2 और टेस्ट। तो क्या हुआ इसमें, तो बेसिकली जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो बेसिक पाइथन में जो है मेरे पास ये फीचर है कि मैंने A को मैप करा 20 से, ठीक है, मैंने B को मैप कर दिया 2.2 से और मैंने मेरे C को मैप कर दिया टेस्ट से। क्या किया मैंने, A इक्वल टू 20, B इक्वल टू 2.2 एंड C इक्वल टू टेस्ट। तो वी कैन असाइन द मल्टीपल वेरिएबल विद द मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। इट्स अ एडवांटेज फॉर अस। अब नीचे आप जब प्रिंट ऑप्शंस को देखेंगे, आपके पास ABC कॉन्केटेनेट भी है, साथ में है। यहाँ पे हमने क्या किया, ABC को साथ में प्रिंट कराया, तो रिजल्ट इज 20, 2.2 एंड टेस्ट। जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो मैंने प्रिंट ABC अलग अलग कराया है, तो A इक्वल टू क्या आया 20, B इक्वल टू 2.2 और C इक्वल टू टेस्ट, जैसा हमने डिस्कस किया था वैसे ही आया ना रिजल्ट। देन वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एक पर्टिकुलर फंक्शन यूज किया है। क्या फंक्शन है वो, मेरा टाइप फंक्शन। ये टाइप फंक्शन के अंदर हम जिस वेरिएबल को एज अ इनपुट दे रहे हैं वो उसका क्या बताएगा, डेटा टाइप बता देगा।
अभी तक हमने कहीं डिक्लेयर नहीं किया है, पर हमारे पर्टिकुलर पाइथन का इंटरप्रेटर ने हमारे वेरिएबल के डेटा से उसे किस तरह का डेटा टाइप दिया है, ये अगर मुझे पता करना है तो मैं किसका यूज करूंगा, टाइप फंक्शन का यूज करूंगा। तो प्रिंट में मैंने टाइप फंक्शन को क्या किया, एज ए इनपुट दिया एंड वी विल हैव द रिजल्ट। क्या हुआ, मेरा ए जो है वो किस क्लास का है, इंट क्लास का है, पर्टिकुलर बी जो है वो किस क्लास का है, फ्लोट का है, और सी जो है वो क्या है, स्ट्रिंग, str, इंट फ्लोट एंड स्ट्रिंग। फ्लोट क्या होता है मेरा, डेसिमल डेटा, इंटीजर क्या होता है मेरा, न्यूमेरिक डेटा, स्ट्रिंग क्या होता है मेरा, टेक्सचुअल डेटा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये यूज करने का तरीका है। अगर मैंने प्रिंट के साथ डिस्प्ले कराया है तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ क्लास। अगर मैंने डायरेक्ट टाइप करके वेरिएबल लिखा है तो मुझे क्या मिलेगा, डायरेक्ट डेटा टाइप का नाम। गुड, इट्स अनदर एग्जांपल। हियर हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, जस्ट वी विल राइट द a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10। अब यहां पे मैंने डिस्प्ले में किसे किया, a को भी किया और b को भी किया, पर जब मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, सिर्फ 10। तो 5 कहां गया, 5 कहां गया। तो बेसिकली जो है पाइथन में अगर हम प्रिंट कमांड यूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, प्रिंट कमांड यूज नहीं करते हैं, तो वो स्क्रीन के रिजल्ट को क्या करता है, ओवरलैप करता है। स्क्रीन के रिजल्ट को क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो यहां पर पहले क्या हुआ, 5 प्रिंट हुआ, देन उसे ओवरलैप किसने किया, मेरे सेकंड वाले वेरिएबल ने, दैट इज द b। तो मेरा रिजल्ट क्या आया, 10 आया। तो ऑलवेज अगर मुझे क्या करना है, रिजल्ट को रखना है स्क्रीन पे, अगले रिजल्ट से पहले वाले रिजल्ट को भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, तो आई शुड गो फॉर द प्रिंट फंक्शन इन अ पाइथन। अगर मैं प्रिंट फंक्शन के साथ नहीं जाता हूं, डायरेक्ट वेरिएबल डिस्प्ले करा देता हूं, तो मेरी एग्जिस्टिंग आउटपुट स्क्रीन को वो क्या कर देता है, ओवरलैप कर देता है। आपको इसका हमेशा क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यू शुड रिमेंबर ऑलवेज output screen will be overlapped by the last variable on a display. Clear है? Next we have the example of the RST. In the R we have the 20, in the S we have the IPS Academy, in the T we have the IS. So when we are representing the RSTC, then what will be the result? तो we have the result आ जाएगा, कुछ हाँ कुछ नहीं, चेक करें, नहीं कि हाँ, बोलो जल्दी, हाँ आ गया। कैसे आ गया, हमने तो c की वैल्यू दी ही नहीं थी। तो बेसिकली यहां ऊपर वाले कोड में देखो, यहां पे हमने क्या दिया था, c इक्वल टू टेस्ट, ठीक है, c इक्वल टू टेस्ट, और यहां पे हमने नहीं दिया। तो इट्स अ एडवांटेज, और यू कैन से दैट द डिसएडवांटेज ऑफ द गूगल कॉलएप। यहां पर ये प्रीवियस मेमोरी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। मैंने a और b की वैल्यू यहां पे नहीं यूज करी, हमने किसकी यूज करी, r s और t की। तो r s t तो मैंने डिफाइन करा पर c नहीं किया। c चूंकि पहले से डिफाइन था तो उसने उसे यूज कर लिया। तो व्हेन यू आर यूजिंग द गूगल कॉलएप, यू शुड रिमेंबर दैट अगर सेम वेरिएबल आप ऊपर जो यूज कर रहे हो वापस नीचे यूज करोगे तो वो प्रीवियस वैल्यू को रिफर कर लेगा। आइदर आपकी वैल्यू आपको चेंज करना पड़ेगी, अदरवाइज यू कांट यू रीयूज द पर्टिकुलर वेरिएबल। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये प्रॉब्लम आएगी आपको गूगल कॉलएप में सिर्फ। क्लियर है? इन द डेस्कटॉप एप्लीकेशन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम लाइक दिस। तो इट्स अगेन रिमेंबरिंग पॉइंट, यू शुड रिमेंबर। आगे बढ़े तो आपको मेरे ख्याल से बेसिक वेरिएबल के बारे में आइडिया हो गया, हाउ वी कैन डिक्लेयर, हाउ वी कैन यूज। नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर द टाइप ऑफ वेरिएबल। हम बोलते हैं वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया देन यूज कर लिया, वेरिएबल में कोई डेटा असाइन किया और उसको यूज कर लिया, पर हर वेरिएबल का एक स्कोप होता है, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द स्कोप? तो स्कोप की जब बात करेंगे हम तो हम दो टर्म्स का बात करेंगे। फर्स्ट वन इज अ लोकल एंड सेकंड वन इज अ ग्लोबल। व्हाट डू यू मीन बाय द लोकल एंड व्हाट डू यू मीन बाय द
ग्लोबल। तो इफ यू राइटिंग एनी प्रोग्राम इन द C++, ओके, तो आपने क्या करा, पहले जो है हेडर फाइल लिखा, देन उसके बाद क्या करा, मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, देन उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, कोई एक सब फंक्शन लिखते हैं x। तो मेन फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल हमने ABC डिफाइन किया है, क्या किया है, मेन फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, तो ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल होता है वो कैसा होता है, मेरा ग्लोबल वेरिएबल। पर इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन के अलावा मैंने कहीं पे कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, कहाँ पे डिफाइन किया है, इस x के अंदर किया है। x के अंदर क्या मैंने डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे r डिफाइन किया है, r इक्वल टू 2 लिखा है, ठीक है, ये मेरा फंक्शन क्लोज हो गया, ठीक। अब पर्टिकुलर मेरा ये जो फंक्शन था ये कहाँ पे क्लोज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो मेरा ABC जो है, जो कि किसका, मेन फंक्शन का हिस्सा है, ये क्या है, मेरा ग्लोबल वेरिएबल। पर ये जो r इक्वल टू 2 है, ये क्या है, मेरा लोकल वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ग्लोबल एंड लोकल? तो जो फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर है वो कोई भी सब फंक्शन यूज कर सकता है। मेन फंक्शन के अंदर कोई डेटा है तो कोई भी सब फंक्शन उसे यूज कर सकता है, पर अगर कोई सब फंक्शन के अंदर डेटा है तो उसे मेन फंक्शन यूज नहीं कर पाएगा। आपको यह ध्यान रखना है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ तो फिर से सुनो, ध्यान दो। आपको क्या याद रखना है, अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज ऐसे है, फॉर एग्जांपल हम हमारे एकेडमी का एग्जांपल ले, आपके पास स्पोर्ट्स ग्राउंड है, ठीक है, एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, एक हॉस्पिटल है, तो आपके एकेडमी में जो रिसोर्सेज है क्या वो आपके अकेले आईएएस के हैं? तो आप बोलेंगे नहीं, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल। सही है, पार्किंग में आए गाड़ी लगाई तो क्या एक ही कॉलेज के बच्चे लगा रहे हैं वहां गाड़ी? नहीं, सभी लगा रहे हैं, तो इट्स एक्सेसिबल टू ऑल। वो पार्किंग क्या है आपका? ग्लोबल वेरिएबल है। पर आप पर्टिकुलर जब बात करेंगे क्लासरूम की, तो उस क्लासरूम में कौन बैठेगा? आप बैठेंगे, इट्स ए रिजर्व फॉर यू। क्लियर है? वो आपकी क्लास है, आप डेली वहां आ रहे हैं, वहां लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, वो उस वहां के जो रिसोर्सेज है वो आपके अपने हैं। पार्किंग के रिसोर्सेज सबके लिए है। वैसे ही लाइब्रेरी की बात करें, अगर मेरे पास पर्टिकुलर जो है 4 क्लासेस है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, तो क्या लाइब्रेरी फर्स्ट ईयर ही यूज करेगा या केवल सेकंड ईयर ही यूज करेगा? नहीं, वो सभी यूज कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी क्या है, मेरा ग्लोबल है, ओपन फॉर ऑल, एनीवन कैन एक्सेस। पर मैं पर्टिकुलर बेंचेस ऑफ द फर्स्ट ईयर क्लासरूम की बात करूं तो वो कौन यूज कर रहा है? फर्स्ट ईयर का बच्चा ही यूज कर रहा है, वो वहीं पे बैठ रहा है, वहीं पे क्लास उसकी चल रही है। सेकेंड ईयर का बच्चा फर्स्ट ईयर की क्लास में आके रेगुलर लेक्चर नहीं अटेंड करेगा। क्लियर है? तो ये वैसा ही है कि मेरा पर्टिकुलर वेरिएबल जो है, जो सब फंक्शन के अंदर है, वो क्या है, मेरे लोकल वेरिएबल है। पर जो मेरे मेन फंक्शन के अंदर है, मेन बॉडी के अंदर है, वो क्या है, मेरे ग्लोबल वेरिएबल। तो यही चीज जो है मेरी यहां पर पाइथन में भी है। अगर मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, तो उस फंक्शन में जो है, फंक्शन के डिफाइन करने के पहले, ये फंक्शन को डिफाइन करने के पहले मैंने क्या लिखा? x इक्वल टू ऑसम, ठीक है। पर जब मैंने फंक्शन के अंदर जो है x की वैल्यू को क्या डिफाइन करा? फैंटास्टिक। ध्यान देना बहुत ध्यान से, है ना, इसे समझो। मैंने इस पर्टिकुलर फंक्शन, ये मैंने क्या डिफाइन किया? फंक्शन डिफाइन किया बाय यूजिंग द डेफ कीवर्ड। डेफ के साथ मैंने डिफाइन के साथ क्या लिखा? फंक्शन का नाम लिखा। फंक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे पैरेंथेसिस, स्मॉल पैरेंथेसिस यूज करना होते हैं। मैंने स्मॉल पैरेंथेसिस के साथ क्या? इंडेंटेशन यूज किया। इंडेंटेशन क्या होता है हमने अभी देखा था थोड़े समय पहले। तो जस्ट मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, इंडेंटेशन यूज करके एक्स की वैल्यू लिख दी। अब जब मैं यहां पर प्रिंट करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? मेरा ऑसम आएगा, फैंटास्टिक। तो इनसाइड द फंक्शन जो है मेरा कौन सा वेरिएबल एक्सेस होता है? अभी मैंने पढ़ा था, लोकल वेरिएबल एक्सेस होता है, ठीक है। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा? जो मेरे लोकल वेरिएबल का रिजल्ट है। पर अगर मैं इस फंक्शन के बाहर हूं, ठीक है, तो वहां पर रिजल्ट क्या आएगा? ऑसम आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, क्या ये मेरा इंडेंटेशन का हिस्सा है? फिर से मैं बता रहा हूं, है ना, मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर करके बता रहा हूं, आपको और क्लियर होगा।
बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंडेंटेशन किया है। ये क्या किया है, इंडेंटेशन। मैंने क्या करा, कोड को शिफ्ट करा है, ठीक है। तो इस इंडेंटेशन के कारण ये जो मेरा 2 लाइन ऑफ कोड है, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये किसका पार्ट हो गया, ये इसका पार्ट हो गया, इस फंक्शन का हिस्सा हो गया। और जब मैं जैसे ही यहां बाहर आया, जैसे ही यहां पे बाहर आया, तो ये क्या है, मेरे डेफ के लाइन में है, तो ये क्या हो गए, मेरे उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर हो गए। अब इट्स अ वे ऑफ कॉलिंग द फंक्शन। ये क्या किया मैंने, मेरे फंक्शन को कॉल किया। इट्स अ वे ऑफ कॉलिंग फंक्शन। मैंने फंक्शन को कॉल किया, यहां पे डिफाइन किया। जब फंक्शन को कॉल किया तो ये पर्टिकुलर मेरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, इसको एग्जीक्यूट किया, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फैंटास्टिक। पर जब मैं इस लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो यहां पर x की वैल्यू जो है वो कहां से उठ के आएगी, यहां से। क्यों, बिकॉज इट्स एग्जीक्यूटेड इन द ग्लोबल स्कोप। ये कहां पे है, ग्लोबली एग्जीक्यूट हो रहा है, इस फंक्शन का हिस्सा नहीं है। फंक्शन के अंदर तो मेरे x की वैल्यू क्या थी, फैंटास्टिक थी, पर ग्लोबली जो है मेरे x की वैल्यू क्या है, ऑसम है। याद रखना। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, ऑसम आएगा। एग्जीक्यूट करके देखे, देखो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड में मेरा रिजल्ट क्या आया, द वैल्यू ऑफ x इनसाइड द फंक्शन। इनसाइड द फंक्शन क्या आया, फैंटास्टिक। पर वहीं जो है मेरा आउटसाइड द फंक्शन जो है, आउटसाइड द फंक्शन क्या आया, ऑसम आया और अवेसम आया। व्हाट यू आर प्रोनाउंसिंग, इट्स अप टू यू। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो अगेन वी आर हियर विद एन एग्जांपल। अब हमने क्या किया, बेसिकली हमने वही किया, क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन के अंदर x की एक वैल्यू डाली, देन उसको हमने क्या किया, डिस्प्ले करा दिया। फिर नीचे हमने क्या किया, तो हमने अगेन एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक नई वैल्यू डाली और फिर उसे डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, तो हमने पहले वाले को कॉल करा, फिर दूसरे वाले को कॉल करा, ठीक। अब इन सब के बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि यहां पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है। यहां पर क्या किया मैंने, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है, पर मैंने इसकी यहां पर क्या करी, कोई वैल्यू नहीं दी है। क्या किया, कोई वैल्यू नहीं दी थी। तो अब इस एक्सेट का जो है वैल्यू, ये क्या लेगा, अभी तक हमने क्या देखा, लोकल और ग्लोबल। तो ये एक्सेट जो है वो क्या हो गया मेरा, अगेन लोकल, ये इस फंक्शन के अंदर है। ये एक्सेट जो है वो क्या है मेरा, लोकल है। तो क्या ये जो एक्सेट का रिजल्ट आना चाहिए वो कहां से आना चाहिए, ग्लोबल से आना चाहिए। तो क्या ग्लोबली कुछ कंटेंट है मेरे पास, नहीं है। तो क्या होगा रिजल्ट, एरर आएगा क्या, चला के देखे, चलो चला के देखते हैं। क्या हो गया, एरर आ गया। क्या एरर आ गया, पहले वाले में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। क्या दिक्कत नहीं थी, पहला वाला जो था आपका वेरिएबल टेस्टिंग 1 एग्जीक्यूट हुआ, रिजल्ट आया क्या, फैंटास्टिक। रिजल्ट क्या आया, फैंटास्टिक। देखो आउटपुट में ध्यान से, ये आउटपुट वाला मार्क है ना हमारा, क्या आया, फैंटास्टिक। क्या हमारा एक्सेट का रिजल्ट फैंटास्टिक था, हाँ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन सेकंड वाले का रिजल्ट है ना, ये इनसाइड द फंक्शन है दोनों ही। सेकंड वाले का रिजल्ट जो है एक्सेट का क्या आया, फन आया। क्या फन था, हाँ फन था, एग्जीक्यूट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेल कहाँ हुआ, इस पर्टिकुलर ग्लोबल वाले में जो है ये क्या हुआ, फेल हो गया। तो इस पर्टिकुलर ग्लोबल वाले में फेल हुआ, तो मतलब क्या हुआ, एक्सेट को हमने कहीं ग्लोबली डिफाइन नहीं किया था, तो उसे उसके लिए क्या मिला, इनपुट डेटा नहीं मिला, इसलिए आउटपुट नहीं आया। तो सॉल्यूशन क्या, तो सॉल्यूशन ये कि हमारा जो ऊपर ग्लोबल एक्सेट लिखा है जिसे हमने कमेंट कर रखा है, अगर मैं इसे कमेंट हटा दूं और मैं इस एक्सेट को जो मेरे वेरिएबल टेस्टिंग 1 फंक्शन में है उसको क्या बना दूं,
ग्लोबल बना दूं। ठीक है, अब मैं एक चीज और नहीं सीखा, क्या नहीं सीखा? बेसिकली मैं ये नई चीज सीखा कि अगर किसी कीवर्ड के आगे मैं क्या करूं, किसी वेरिएबल के आगे ग्लोबल कीवर्ड यूज कर दूं, किसी वेरिएबल के आगे क्या करूं, ग्लोबल कीवर्ड यूज कर दूं, है ना, ग्लोबल देन वेरिएबल नेम। अगर मैं इस सिंटेक्स को फॉलो करता हूं तो ये पर्टिकुलर वेरिएबल जो है ये क्या हो जाता है, मेरा ग्लोबल स्कोप में चले जाता है। इस कारण जो मेरा रिजल्ट है वो क्या आया, फैंटास्टिक। जो ये था वो मेरा यहां पर भी आ गया। क्लियर है? आई थिंक सो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको समझ में आया होगा। मूव करें आगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन मोस्ट नेसेसरी है। बिना वेरिएबल को समझे आप कोड नहीं कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल मूव, एक और छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। स्क्रीन पे कमेंट्स क्लियर। अगेन हम जो कर रहे थे वही करेंगे। अब हमने क्या किया, ये कैसा है, अब हम 2 एग्जाम्पल कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आपको आना चाहिए। x1 कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल है या लोकल है? गुड, ग्लोबल वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल है, देन हमने क्या किया, अगेन एक फंक्शन को डिफाइन किया। उसमें हमने क्या किया, ग्लोबल x1 डिफाइन किया। ठीक है, x1 की वैल्यू फिर हमने डाल दी एंड देन क्या किया, रिजल्ट को डिस्प्ले करा दिया। यहाँ कोड को एग्जीक्यूट किया एंड देन यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन डिस्प्ले करा दिया। ये क्या है मेरा ग्लोबल स्कोप में, ये क्या है मेरा लोकल स्कोप में है प्रिंट। एग्जीक्यूट करा दे, कोई दिक्कत आएगी? नहीं, बिना किसी प्रॉब्लम के एग्जीक्यूट हो गया। पर ये जो हमने कमेंट में प्रिंट डाल रखा है, अगर इसको हम कमेंट से हटा के एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एरर। क्यों आई? क्यों आई एरर? क्योंकि हमने ग्लोबल जो है वो क्या कर रखा है, नीचे डिफाइन कर रखा है। क्या कर रखा है हमने, ग्लोबल यहां डिफाइन कर रखा है। और क्या किया हमने, ग्लोबल यहां डिफाइन किया और प्रिंट कहां करा दिया, यहां करा दिया। तो यहां पर तो x1 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। इस कारण जो है मुझे क्या आ गई, एक सिंटैक्स एरर आ गई, क्योंकि x1 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। x1 के पास कोई डेटा ही नहीं है। ग्लोबल तो मैंने बाद में बनाया और रिजल्ट पहले पूछ लिया। आपको पढ़ाया नहीं और मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं। पहले पढ़ो देन आंसर दो। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज द डेटा टाइप्स। हमने वेरिएबल पढ़ लिया, अब हम किसकी बात करेंगे, डेटा टाइप्स की बात करेंगे। तो कौन कौन से डेटा टाइप हमारे पास होते हैं? तो सर हमको तो कुछ नाम जो है वो पता है, क्या है, तो वो नाम है मेरे पास, आइदर आई विल नो अबाउट द इंट, है ना, इंट का पता है, फ्लोट का पता है, फिर क्या पता है, अभी हमने एक और देखा था, स्ट्रिंग देखा था, और क्या देखा था हमने अभी, तो सर अभी तक तो हमने सिर्फ 3 को देखा है, बाकी को नहीं देखा है। हमने जब टाइप चलाया था, क्या चलाया था, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या कर रहा था, तो टाइप फंक्शन में जब भी कोई हम वेरिएबल का नाम देते हैं तो वो उसका क्या बता देता है, डेटा टाइप बता देता है। तो उस वक्त हमने किन का नाम देखा था, तो उस समय हमने इंट देखा था, फ्लोट देखा था और स्ट्रिंग देखा था। ठीक है, अब हम बाकी को भी चेक करें। तो सिंपल तरीका जो था हमारा वही है, हम इनपुट दे रहे हैं =55, =222.5, आयरन मैन, समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। और बेसिकली फिर हमने क्या बोला कि हमारा पाइथन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सपोर्ट करता है। चलो चेक कर लेते हैं। हमने क्या लिखा, =1 + 2j। ठीक है, देन क्या किया, इन सबको डिस्प्ले कराया। हाँ, हमने एक काम और किया, हमने चेक किया कि क्या मेरा पाइथन बुलियन डेटा को सपोर्ट करता है, तो मैंने p = true भी लिख दिया। और सब जगह क्या डिस्प्ले कराया, टाइप। सब जगह डिस्प्ले क्या कराया, टाइप फंक्शन, ये जो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली हमने क्या किया, टाइप को यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया। ये क्या करेगा, मेरे ये जो a की वैल्यूज है, ठीक है, a में हमने कोई डेटा स्टोर किया, हमने यहाँ में a में
222.2 डाला, यहाँ पे 55 स्टोर किया, यहाँ पे आयरन मैन स्टोर किया, यहाँ पे और लंबा डेसिमल स्टोर किया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वैल्यू स्टोर की, तो सबको चेक करके बताएगा कि उनका डेटा टाइप क्या है। क्लियर है? तो चलो कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। क्या करना होगा? कंट्रोल प्लस एंटर और वी कैन रन इट। चलो रन कर दिया हमने। रिजल्ट क्या आया? तो बेसिकली इन द रिजल्ट, क्लियर करें स्क्रीन, बहुत सारा कमेंट हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो वी हैव द इंट, वी हैव द फ्लोट, वी हैव द स्ट्रिंग, वी हैव द फ्लोट, वी हैव द कॉम्प्लेक्स, वी हैव द बुल। तो हियर वी डोंट हैव द ऑप्शन लाइक द डबल। दोनों जगह जो है मेरे पास क्या आ रहा है? फ्लोट आ रहा है। दोनों जगह ऑप्शन में क्या आ रहा है मेरे पास? फ्लोट आ रहा है ना। तो इंट एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, कॉम्प्लेक्स है, बुलियन है। तो ऐसे और भी कई डेटा टाइप हमारे पास पाइथन में है। हम उन्हें यूज करेंगे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस इज नेसेसरी। अभी हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, पर फंडामेंटल पढ़ने के साथ हमको क्या जरूरी होगी? प्रैक्टिस जरूरी होगी। बिना प्रैक्टिस के प्रोग्रामिंग में मजा नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस आपको करना है, जो सीखा है उसको ट्राई करना है। ठीक है, ये क्लियर है? डेटा टाइप्स कैसे हम फाइंड करेंगे ये क्लियर है। टाइप फंक्शन का यूटिलाइजेशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। देन नेक्स्ट हमारे जो चीज जो पाइथन का एडवांटेज है और हमारे लिए आवश्यक है, दैट इज द टाइप कास्टिंग। दैट इज द टाइप कास्टिंग, और यू कैन से दैट द कन्वर्जन बिटवीन द डेटा टाइप्स। यू कैन से द कन्वर्जन बिटवीन द डेटा टाइप्स। अब कन्वर्जन कैसे करें, क्या फायदा होगा? तो बेसिकली जो है, मैंने इनपुट में क्या लिया? इंटीजर। यहां पे क्या लिया? फ्लोट। और यहां पे क्या लिया? अगेन फ्लोट। पर मैंने क्या किया? इस फ्लोट इंटीजर को कन्वर्ट किस में करना चाहा? फ्लोट में। ये फ्लोट को किस में कन्वर्ट किया? इंटीजर में। ये फ्लोट को किस में कन्वर्ट किया? स्ट्रिंग में। ध्यान देना, हमने क्या किया? टाइप कास्ट किया। इन द प्रिंट का क्या यूटिलाइजेशन? प्रिंट का कुछ नहीं है। प्रिंट क्या करेगा? जो इनपुट आया है उसे एज इट इज डिस्प्ले करा देगा, पर किसके बाद? टाइप कास्टिंग करने के बाद। तो टाइप कास्टिंग बहुत इजी हो गया ना अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेयर में। पाइथन में क्या हुआ? हमारा टाइप कास्टिंग आसान हो गया। मुझे क्या करना है? सिर्फ डेटा टाइप का नाम लिखना है और क्या करना है? इनपुट देना है, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो जाएगा। आइदर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेटा दूं या क्या करूं? वेरिएबल को पास कर दूं। दोनों कंडीशन में जो है मेरा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करके देखें। सेम, कंट्रोल एंटर। अब क्या हुआ देखो ध्यान से जरा। बेसिकली यहां पे क्या आया रिजल्ट? 200.00। और मैंने इनपुट क्या दिया था? 200 दिया था। इनपुट में क्या दिया था मैंने? 200। रिजल्ट क्या आया? 200.0। क्यों आया? क्योंकि मेरा डेटा टाइप क्या था? फ्लोट था। समझ में आया? वैसे यहाँ इंटीजर क्या था मेरा? 120.215 है ना। तो ये 215 जो है ये क्या था मेरा? फ्लोट। पर जब मैं इंटीजर में गया तो ये गायब हो गया और मेरा रिजल्ट क्या आया? 120 आया इंटीजर के कारण, क्योंकि हम डेसिमल के बाद की वैल्यू नहीं लेते। अगर ये 5 अब होता तो 120.512 होता तो क्या होता रिजल्ट मेरा? चेक करें, क्या ये राउंड ऑफ करता है? क्योंकि बचपन से तो हम पढ़ते आए हैं कि राउंड ऑफ जैसी कोई चीज होती है। तो क्या ये टाइप कास्टिंग में राउंड ऑफ करता है? तो देन आंसर इज नो। ये क्या करता है? फ्लोर वैल्यू को उठाता है। क्या करता है? फ्लोर वैल्यू को उठाता है। रिजल्ट विल बी द 120। टाइप कास्टिंग में इसका आपको याद ध्यान रखना है। देन स्ट्रिंग में क्या हुआ? जैसा हमने इनपुट दिया वैसा ही डिस्प्ले हो जाएगा। वो उसे कैसे ट्रीट करेगा? इन द कॉट्स। मेरे ख्याल से कन्वर्जन क्लियर है। ऐसे ही आप डेटा टाइप्स में कन्वर्जन कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज अ कीवर्ड, है ना। तो भैया जो हमारा पाइथन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। तो कौन कौन से हैं और कितने हैं?
तो बहुत सारे में जो है हमारे पास कुल कितने हो गए 35 कीवर्ड्स। कितने हैं 35 कीवर्ड्स। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, असिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास एंड मैनी मोर। और सिंपल आपको क्या लिखना है इंपोर्ट कीवर्ड और कीवर्ड की लिस्ट को क्या करना है प्रिंट करना है। और लेंथ ऑफ कीवर्ड, ये लेंथ फंक्शन से आपको क्या मिल रहा है ये काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो दीज आर द some ways from where I have the idea about the keywords। अब कीवर्ड फाइंड करने से फायदा क्या है? बेसिकली इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर मैं कीवर्ड से वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ कीवर्ड का नाम ही वेरिएबल का नाम रखना चाहता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। कभी भी कीवर्ड का नाम जो है वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है, इसलिए आपको कीवर्ड्स पता होना चाहिए। ठीक है, और कीवर्ड से मुझे फंक्शनलिटी भी पता होती है। कीवर्ड मुझे पता है तो मैं प्रोग्रामिंग सिंटैक्स को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो इन द पाइथन यू हैव अ वे टू फाइंड आउट द कीवर्ड्स, कौन कौन से कीवर्ड्स है वो आप पता कर सकते हैं। तो दीज आर सम कीवर्ड्स। ठीक है, ट्राई, वाइल, नॉट, इफ, फॉर, फ्रॉम, डेफ, डेल, ये सब क्या है मेरे कीवर्ड्स है। नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, अब जब स्टोरेज लोकेशन की बात करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेरिएशन मिलेगा इन द कॉलैब एज वेल एज द डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऑफ द पाइथन। पाइथन डेस्कटॉप एप्लीकेशन से कॉलैब जो है थोड़ा सा वेरी करेगा। तो आपको ये माइंडसेट क्लियर रखना है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज लोकेशन, तो इन द कॉलैब यू वोंट हैव द प्रॉपर रिजल्ट्स, you have the proper result in the desktop application। तो desktop application कैसे use करेंगे आप? You should go on the python.org or go on the downloads। You have the latest version as a 3.12, download that and install that। Simple, next and then finish। It's not quite difficult task, you will do it easily। If you have any problem, just follow the tutorial available at there with the pictures। You have the complete idea how to install। Just install it and then you will go for execute the commands, you will got the difference। Okay, here just we are trying to same things। We are writing the x equal to 1 2 3 and y equal to 1 2 3 and we want to find out the location of the x and y। A thing you should remember, we are talking about the value that is the 1 2 3। We are storing the same value in the x as well as the same value in the y। So are we have the different address or we have the same address? So you can see that for the x location is same, for the y location is same। When we are talking about the value of IPS in the Z1, Z2, Z3, again we have the same value for the IPS and IPS। But when we are talking about the IPS, here I is capital, just think that here I is capital, we are talking about the IPS, I is capital, in the above we have the IPS is a small। So for the two address is same and for the third location address is different। क्लियर है? तो जब एक वैल्यू स्टोर होगा तो उसकी मल्टीपल कॉपीज चाहे जितनी हो वो रिफर किसे करेगी, सेम लोकेशन को रिफर करेगी। तो इससे डेटा स्टोरेज का जो बर्डन है वो क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो जाएगा और इसे ऑफलाइन भी ट्राई करके देखना, you will got the results। Then next one is Python booleans। तो we have tried just above। हमने क्या देखा था कि पाइथन में जो है वो बूलियन को सपोर्ट करता है, ट्रू फॉल्स रिजल्ट को सपोर्ट करता है। तो अगर मैं डायरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए देता हूँ, क्या करता हूँ डायरेक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए देता हूँ, तो क्या होगा मेरा 101 is greater than 999, the result is false। 99 is equal to 99, result is true। 10 is less than 9, again result is false। तो लॉजिकल जो है कैलकुलेशन जो है वो डायरेक्टली मेरा पाइथन एग्जीक्यूट करके मुझे अवेलेबल करा देता है। वी वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, तो इट्स क्वाइट सिंपल टू कोड इन द पाइथन। आई थिंक सो यू हैव द फीलिंग ऑफ द ऑल दिस थिंग्स।
लिमिटेड स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स में ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम एग्जीक्यूट करते हैं, है ना, आसान है ना। हाँ, तो पाइथन में कोडिंग करना फिर फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल राइट ऑन अ कोड ऑन अ पाइथन, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे सिंटेक्स याद करने की ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रही है, इजी टू लर्न है। हमने फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, हाँ इजी टू लर्न है ना। चलो अब हमने क्या लिखा कि हम जो है डायरेक्ट बुलियन होने के कारण फ़ायदा मिलता है मुझे। चलो चेक करें कि अगर कोई स्ट्रिंग डायरेक्ट अगर कोई वैल्यू मुझे इनपुट में मिल गया है तो क्या उसको भी चेक करेगा। तो वी विल लर्न अबाउट द बुल फंक्शन, ठीक है। एनी स्ट्रिंग इज ट्रू एक्सेप्ट द एम्प्टी स्ट्रिंग एज वेल एज द एनी नंबर इज ट्रू एक्सेप्ट द 0। चेक करें, चेक कर लेते हैं भैया। पहले जो 2 है वो ट्रू आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि मेरा रूल क्या बोलता है, एनी स्ट्रिंग इज ट्रू। चलो भैया हमने आईपीएस लिखा था तो ट्रू हो गया। देन हमने क्या लिखा, एनी नंबर इज ट्रू, हाँ भैया 1 लिखा था तो ट्रू हो गया। पर क्या चेंज क्या हुआ यहाँ पे, चेंज क्या हुआ, तो चेंज ये हुआ कि यहाँ पे हमने क्या लिखा, एम्प्टी स्ट्रिंग दिया। एम्प्टी स्ट्रिंग दिया तो रिजल्ट विल बी द फॉल्स। यहाँ पे क्या किया हमने, कोई यहाँ कोई नंबर नहीं दिया है ना, 0 गया तो सबका फॉल्स आया। यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग गया तो क्या हुआ, फॉल्स आया। इनपुट है तो रिजल्ट विल बी ट्रू, इनपुट नहीं है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स इन द केस ऑफ बुल फंक्शन, है ना। फंक्शन का ध्यान रखना, बुलियन फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रिंग। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है वो पाइथन में मेजर प्लेयर है। स्ट्रिंग से खेलना, स्ट्रिंग का यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए। जब पाइथन के एडवांस वर्जन में जाओगे आप, है ना, आप NLP पे जाओगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के कोई कोड आपको करना है, एट दैट टाइम स्ट्रिंग की लाइब्रेरी जो है आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। आपको कोई फाइल प्रोसेसिंग का काम करना है, फाइल हैंडलिंग का कोड लिखना है, एट दैट टाइम स्ट्रिंग जो है आपके लिए यूज़फुल होगा। कहीं से आपको टेक्स्ट रिट्रीव करना है, कमेंट रिट्रीव करना है, एट दैट टाइम स्ट्रिंग आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो ईमानदारी से स्ट्रिंग को समझो, ठीक है, पढ़ो इसे। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में बी अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इट मे बी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, टेक्सुअल भी हो सकता है या मिक्स ऑफ टेक्स्ट और नंबर भी हो सकता है। हम ऑलवेज किस में देंगे, डबल कोट में या सिंगल कोट में। या तो मेरा इनपुट क्या होगा, डबल कोट में होगा या क्या होगा, सिंगल कोट में, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। चल अब सिंगल लाइन स्ट्रिंग के लिए तो हमने डबल कोड और सिंगल कोड लिख लिया, पर जब मुझे क्या करना है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग यूज करना है। क्या करना है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूंगा, ट्रिपल कोड का यूज करूंगा। अब ये ट्रिपल कोड या तो डबल कोड में होंगे या सिंगल कोट में होंगे, ठीक है। तो ये रहा मेरा ट्रिपल कोड में मल्टी लाइन स्ट्रिंग, और ये है मेरा ट्रिपल सिंगल कोट में, है ना, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका आइदर सिंगल और डबल और मल्टीपल लाइंस में लिखना है तो ट्रिपल कोट, हाँ। पर यही वे जो है मेरा क्या है, कमेंट का भी है। तो ऑलवेज ध्यान रखना कि इसके आगे मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ए इक्वल टू, है ना, वेरिएबल में असाइन करना है। अगर ये मेरा ए इक्वल टू नहीं लिखा मैंने तो ये क्या हो जाएगा, मेरा कमेंट की तरह ट्रीट होगा। कैसे ट्रीट होगा, कमेंट की तरह ट्रीट होगा, है ना। ट्रिपल कोड से मैं कमेंट रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आपको इस बात का क्या करना है, ध्यान रखना है। जब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ करने वाले हैं तो प्रॉपर यूज़ करें, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज अ कमेंट। रन करके देखिए हमारा कोड, एरर आ गई। क्यों आ गई, तो जो मैंने आपको कहा था, क्या कहा था कि इस पर्टिकुलर जगह पे आपको क्या आ जाएगी, कंफ्यूजन आ गई। कैसी कंफ्यूजन आ गई कि अभी हम बोल रहे थे ये क्या है, मेरा कमेंट है, अब इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग में यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो ये नहीं हो पाएगा बिकॉज ये क्या है, मेरा कमेंट है। तो गलती ना हो इसलिए हमें इसे ऑलवेज ध्यान रखना है, ठीक है।
कोड को फिर से एग्जीक्यूट कर दे, फिर से एक और एरर, क्या है, अगेन सेम, ठीक है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और ये जो रिमेनिंग है, ये जो है, ये मेरा क्या बन गया, कमेंट बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे बढ़े, चलो। हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन ए स्ट्रिंग। मेरे स्ट्रिंग में जो है मान लो 10 कैरेक्टर है और मुझे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा, तो आई राइट दैट द इनपुट में हमने दे दिया क्या, माय फर्स्ट पाइथन कोर्स, ठीक है। अब स्ट्रिंग का एक अच्छा बात ये होता है कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो पर्टिकुलर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। मैंने क्या लिखा, माय देन फर्स्ट, है ना, देन लिखा पाइथन, माय फर्स्ट पाइथन। तो ये क्या हुआ मेरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड द 14, ये 14 है। तो 0th पोजीशन जो है मेरी, 0 पोजीशन पे वो क्या है, m, 1 पोजीशन पे क्या है, y, 2 पोजीशन पे क्या है, स्पेस, 3 पोजीशन पे क्या है, f, 4th पोजीशन पे क्या आ रहा है मेरा, i, 5th पोजीशन पे क्या है मेरा, r, 6th पोजीशन पे क्या है, s, 7th पोजीशन पे जो है वो क्या है मेरा, t, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पूरे स्ट्रिंग को मैंने क्या किया, अरे की इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग जमा दिया, है ना। जस्ट लाइक द अरे आई कैन एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है। अब अरे क्या होता है, तो अरे जस्ट हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फिक्स लेंथ अरे की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हम क्या कर रहे हैं, अरेंज में, सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं, डेटा को लाइन में जमा रहे हैं। तो स्ट्रिंग कुछ मेरा ऐसे ही यूज़ होता है। जिससे अरे नहीं समझ में आता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। जब आएगा तब हम पढ़ेंगे। बेसिकली C++ में अरे का कंसेप्ट होता है। यहाँ पे हम क्या करो, आप ये समझो कि मैंने एक लाइन में जो है मेरे कंटेंट को क्या कर रहा है, जमा रखा है, और मैं उस ऑर्डर के हिसाब से डेटा को क्या करूँगा, रिट्रीव करने की कोशिश करूँगा। तो A0 जैसे ही मैं एक्सेस करूँगा, तो A0 में मेरे पास डेटा क्या था, तो A0 में मेरे पास डेटा था m। देन A2 को एक्सेस करूँगा, तो A2 में जो था कि मेरे पास क्या है, ब्लैंक स्पेस है। देखो वहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस है ना। देन A5 जो है वो क्या है मेरा, R, चेक करो, A5 पे मेरा R था, हाँ था। देन A9 जो है वो क्या है मेरा, कैपिटल P, चेक करो, हाँ A9 पे मेरा कैपिटल P है, ठीक है। देन ऐसे ही A21 E आया। अब दिक्कत आ गई क्या, अरे सर अभी तक तो हम सब जो है पॉजिटिव जा रहे थे, हम यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, तो यहाँ पे आपने लिख दिया A-4। अब -4 का मतलब क्या, तो फिर कंफ्यूजन हो गया। तो हम कहाँ तक आ गए थे, हम 14 तक तो आ गए थे। अब मेरे पास जो था 15 वो क्या था, स्पेस, 16 17 18 19 20 21। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने मेरे पास है, 21। 21 पे क्या आ गया था मेरे पास, U आ गया, ठीक है। पर जो है मुझे नहीं पता चला, वो कौन नहीं पता चला, -4। तो -4 कैसे पता करेंगे, तो -4 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे से चेक करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, पीछे से। 21 पे मेरे पास क्या था, E आया था, है ना, कोर्स में E लास्ट में था, ठीक। अब पीछे से चेक करूंगा, तो वापस क्या करूंगा, तो E जो मेरा 21 था, है ना, ये मैं लिख दूं यहाँ पे, कोर्स, लास्ट क्या है मेरे पास, कोर्स। अब ये यहाँ पे जब मेरा इंडेक्सिंग चल रहा था, है ना, ये वाला इंडेक्सिंग, तो ये क्या चल रहा था, 21, ये क्या था 20, ये क्या था 19, है ना, ये क्या था 18, ऐसा चल रहा था। पर जब मैं रिवर्स में चलूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, -1, ये क्या हो गया -2, ये क्या हो गया -3,
और ये u क्या हो गया मेरा -4। तो -4 पे जब मैं पीछे से देखूंगा तो क्या आएगा मेरा रिजल्ट u। देखो इस पर्टिकुलर का रिजल्ट क्या आ रहा है u। पीछे से रिवर्स में हम चेक करेंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो जब फ्रंट से जा रहे हैं तो मैं चालू कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 0 से चालू कर रहा हूँ। जब मैं रिवर्स में आ रहा हूँ तो कहाँ से चालू कर रहा हूँ -1 -2 -3 -4। तो कहाँ तक आऊँगा मैं, कहाँ तक आऊँगा -22 तक आऊँगा, क्योंकि पॉजिटिव में कहाँ 0 से कहाँ तक गया था 21 से। तो नेगेटिव में कहाँ से आऊँगा मैं -1 से -22 तक आऊँगा। तो बाय दिस यू हैव द रिजल्ट, है ना। दूसरा जो है मेरा, अब मैंने a of -7 लिखा, तो a of -7 लिखा तो -7 जो है तो ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था, तो 7 जो है वो क्या है मेरा स्पेस है, ब्लैंक है। तो ये देखो ब्लैंक आ गया रिजल्ट में। देन आप जब देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, लेन फंक्शन यूज़ किया, याद है इससे पहले भी हमने किया था। तो len लेन फंक्शन जो है पाइथन में वो क्या बताता है आपको, स्ट्रिंग का लेंथ बताता है। स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो स्पेस भी जो है एज ए कैरेक्टर काउंट होता है क्या, तो देन आंसर इज यस। बाय व्हेन वी आर यूजिंग द लेंथ फंक्शन तो स्पेस जो है वो एज ए कैरेक्टर काउंट होता है। तो यहाँ पे हमने स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर काउंट कर लिया। तो मेरा रिजल्ट क्या आया 22, 0 to 20 बन गए थे ना अभी हमने बात की, और उधर -1 से -22 आए, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हुए 22। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या आया मेरा 22। और लेंथ वैसे ही हमने जब यहाँ बी में एक और एग्जांपल लिया NEE स्पेस RAJ, तो टोटल ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए 6 नहीं, क्या हुआ NEE के बाद स्पेस है तो टोटल कितने कैरेक्टर हो जाएंगे, जल्दी बताओ 7। चेक करें, बेसिकली यहाँ पे 2 स्पेस है, एक स्पेस नहीं है। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा 8। रिजल्ट क्या आएगा 8। कंफ्यूजन है, स्क्रीन पे चेक करो, देखो मैंने बीच में क्लिक किया है ना, क्लियर करूं, नहीं समझ में आ रहा है, देखो बीच में ब्लिंक हो रहा है, इसके इस साइड एक स्पेस है, इसके इस साइड भी एक स्पेस है, तो टोटल स्पेसेस कितनी है 2। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हो गए मेरे रिजल्ट में 8। याद रहेगा, कोई दिक्कत यहां तक, आई थिंक सो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ जाए हम। तो नेक्स्ट वी विल मूव फॉर द स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। हम किस पे मूव करेंगे, स्लाइसिंग पे मूव करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अभी तक हमने क्या किया, एक एक कैरेक्टर उठा लिया है ना। 12वीं पोजीशन पे कौन था, 8th पोजीशन पे कौन था, 6th पोजीशन पे कौन था, 4th पोजीशन पे कौन था, एज पर द पोजीशन मैंने कैरेक्टर पिक कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करें, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को पिक करें। क्या करें, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को पिक करें। हमारी स्ट्रिंग को क्या करें, स्लाइसेस में उठाए, छोटे छोटे पीसेस में उठाए, है ना। तो मैं प्रिंट ए करूंगा तो क्या होगा, मेरी एज इट इज पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनपुट में जो है पूरी की पूरी स्ट्रिंग ए में दे दी है। पर अब मैं इस ए को क्या करूँ, सब पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। मैंने लिखा 0 to 3 लिखा, तो मेरा रिजल्ट क्या क्या प्रिंट होगा, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स 0 1 2, ऑलवेज n-1 चलेगा, इसका याद रखना। ठीक है, ये लास्ट है, फिर ब्रेक ले लेंगे, याद रहेगा। क्या करेंगे, 0 1 2 3 कैरेक्टर पिक करेंगे। ठीक, देन नेक्स्ट जो है हमने लिखा 6, देन कॉलन एंड उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा। मतलब क्या हुआ, 6th कैरेक्टर से लास्ट तक जितना है सब प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने एंड डिफाइन नहीं किया, तो लास्ट तक जितना है सारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने इनिशियल डिफाइन नहीं किया है, तो शुरुआत जहां से हो रही हो वहां से कहां तक आएगा 2 तक, कहां आएगा 2 तक। अब n-1 नहीं होगा, जब हम इनिशियल और एंड डिफाइन करेंगे तो n-1 होगा। तो हमने 3-1 किया तो क्या आया, 0 1 एंड 2 प्रिंट में आया। पर जब इनिशियल डिफाइन नहीं हो 2 लिखा तो 2 तक का सारा आ जाएगा। ठीक है, देन -1 लिखा तो लास्ट कैरेक्टर प्रिंट होगा।
जब इनिशियल और एंड डिफाइन दोनों नहीं है तो क्या होगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। मैंने -1 से -5 से -1 लिखा, मतलब क्या हुआ, आपकी पीछे से रिवर्स स्ट्रिंग जो है वो क्या होगी, प्रिंट होगी। ठीक है, तो रिवर्स स्ट्रिंग के लिए एक और अच्छा ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ -22 से -1 लिख दूँ, होल स्ट्रिंग विल बी प्रिंट इन अ रिवर्स। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज हमने यहाँ पे और देखी, क्या देखी, अभी तक हम बात कर रहे थे इनिशियल वर्ड एंड वर्ड, पर यहाँ पे ये तीसरा कौन आ गया, इस तीसरे का मतलब क्या है, तो ये क्या बता रहा है, स्टेप। हम क्या कर रहे हैं, गैप कर रहे हैं वर्ड्स की। कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखना अभी, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी क्या किया, इनिशियल और स्टार्ट नहीं बताया, पर गैप क्या बताया, -1 का, स्टेपिंग क्या बताया, -1 का बताया, है ना। अब इसका आउटपुट ध्यान से देखना, आपको चीजें और क्लियर होगी। पहले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्या प्रॉब्लम नहीं था पहले वाले में, तो हमने सीधी सिंपल सी बात की थी कि मुझे क्या करना है, 0 to 3 प्रिंट करना है, ये मेरा मेजर स्ट्रिंग है, जो भी है नंबर इसी में मेरे को डालना है, इसी को यूज करना है। अभी मैंने 0 to 22 डाल के आपको बताया था, 0 to 21 डाल के, है ना। तो 0 पे क्या है मेरा m, 1 पे कौन है y, और 2 पे क्या है स्पेस, तो 0 1 2 प्रिंट हो गया मेरा, my आ गया। देन अगले में क्या था मेरा, 6 to एंड तक, तो 6 पे कौन था, तो 4 पे f था, 5 पे I था, है ना। प्रिंट फ्रॉम द 6 कैरेक्टर टू देन, 6 पे क्या आ रहा है मेरा, s आ रहा है, तो s t, देन ये मेरा पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। ठीक है, देन इनिशियल टू 2 तक, तो इनिशियल टू 2 तक में कौन आया, अगेन मेरा my आया। देन -1 में मेरा लास्ट कैरेक्टर, अभी हमने चला के देखा था। फिर हमने बोला होल स्ट्रिंग, इनिशियल और एंड दोनों नहीं दिया, तो ये मेरा होल स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं है। अब हमने बोला -5 to -1, तो -5 जैसे ही मैंने देखा, तो -5 क्या था मेरा, तो मैंने रिवर्स में देखा था ना, -1 -2 -3 -4 एंड द -5, तो -5 पे O आया, तो O से लेके S तक प्रिंट कर दिया मैंने। ठीक है, वैसे ही जब मैंने 0 to 22 बोला और विद द स्टेप ऑफ 2 बोला, तो 0 to 22 विद द स्टेप ऑफ 2, तो फर्स्ट 0 पे क्या है मेरा m के बाद जो है, अब मुझे क्या करना है, सेकंड कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो m के बाद जो है y मुझे लेना है क्या, नहीं, स्किप करना है, मुझे इसके बाद वाला लेना है, वो क्या है, स्पेस, तो मैंने ले लिया स्पेस। अब स्पेस के बाद जो है मुझे नेक्स्ट लेटर को छोड़ना है, सेकंड को प्रिंट करना है। नेक्स्ट कौन है, f, अगला कौन है I, तो मुझे प्रिंट किसको करना है, I को। देन उसके बाद क्या करना है, R को स्किप करना है, S को प्रिंट करना है, S। देन क्या करना है, T को स्किप करना है, स्पेस को प्रिंट करना है, तो स्पेस हमने छोड़ दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, 2 का स्टेपिंग लिया, मतलब हर बार अब सेकंड कैरेक्टर को हम प्रिंट करेंगे, एक कैरेक्टर को स्किप करके सेकंड को प्रिंट करेंगे। तो ये आपको स्टेप क्लियर होगा। वैसे ही जब मैंने -1 का स्टेप लिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, पीछे से चल रहा हूं, मैंने E को प्रिंट किया, देन क्या किया, स्केप किया, -1 किया, S को प्रिंट किया, फिर -1 किया, R को प्रिंट किया, -1 किया, है ना। तो मतलब मैं पीछे से क्या कर रहा हूं, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करते आ रहा हूं। -1 इनिशियल टू एंड में स्टेप -1 लेने से मेरा स्ट्रिंग क्या होता है, पूरा रिवर्स में प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग का प्रोग्राम मेरे ख्याल से आपको बड़ी आसानी से एक सिंपल लाइन ऑफ कोड में बन गया। तो अगर आपसे ये कोई बोले कि रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, तो ये एक सिंगल लाइन आपको पाइथन में लिखना है। रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हो गया आपका, सारा का सारा स्ट्रिंग जो है वो उल्टे में प्रिंट है। ये क्या है, इसका आउटपुट है। सिंपल है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आज के लिए ये सफिशिएंट। अब इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच।